Hello everyone, welcome once again to our channel. Now in this video we are going to do question number 2 from exercise 1.2. Okay, I have done question number 1 in my previous video, so you can go and watch them on my channel. Okay, let's start with the question number 2. In this question you have to check whether these functions are injective or surjective. Injective, that means 1 1, you have to check for 1 1, and surjective, that means you have to check these functions for onto. So let's check this one by one. Okay, the first question is f is from n to n, natural number to natural numbers, and the function is given by fx is equal to x square. Now natural number is 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, now you have to take the mapping x square, मतलब जो भी number है you have to square that number. Okay, so let's do that. So when you square this number 1, what you will get, the number you will get, the answer is 1. Okay, when you square 2, what you will get, 2 square is 4, so you will get the number as 4. What about 3? When you square 3, 3 square is 9, you get the number as 9. Now we have to check whether this function fx is equal to x square is 1 1 or onto. 1 1 के लिए क्या चेक करना है? 1 1 के लिए you have to look at your domain. If all the elements are in the mapping, like and that is only one map through one element. Okay, like 1, that is mapped to 1. 2, again it is mapped to some number. 3, it is mapped to some number. So when you take these numbers, they will map to some number. That means this function is going to be 1 1. So as you can see from this figure, this is always going to be 1 1. Okay, so this function is 1 1. What about onto? For onto you have to look at your codomain. Okay, now in the codomain we have 1, 4 and 9. So as you can see here, you have some numbers after 1, you have 2, because this is a natural number set. So you have 1, 2, 3, then 4, then you have 5, 6, 7, 8. Now these numbers are not mapped with any numbers from this set. Okay, they are left behind. So as you can see, when you take the opposite of this, opposite मतलब जब हम इस यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट. तो यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है ऐसा जिसका स्क्वायर करने से 2 मिल रहा है. ठीक है, तो जैसे हमें रूट 2 रहता है, रूट 2 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो रूट 2 है नहीं. ठीक है, तो ये नंबर जो हैं ये लेफ्ट आउट है इस सेट में, जिनका कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रहा है. तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑन टू. ओके, so this set is not onto. So for this you have to write the proof that fx is equal to x square is 1 1, and it is not onto. That means we are going to write one element for which we are not getting the pre-image. So let's do that. Okay, let's do it for 1 1. So we have to start with the definition. Let f of x is equal to f of y. Okay, so that implies that x square is equal to y square. So that implies that x is equal to y. Okay, so we have started from fx is equal to xy, and we reached where fx is equal to xy, x is equal to y. So this function is 1 1, f is 1 1. Okay, what about onto? What you have to do in onto? For onto you have to pick one element, because it is not onto as we have seen from this. So you have to write for 2 belongs to n. Now this n is our codomain. Okay, for 2 belongs to n, we don't have any pre-image. Okay, we don't have any pre-image. We don't have any pre-image in n. That is, this n is domain, जो पहला सेट है हमारा. ठीक है, उसमें हमें कोई प्री इमेज नहीं मिली. Therefore f is not onto. तो हमारा f क्या हो गया, onto नहीं होगा. So like this we have to prove the second one also. Okay, now for my question is, you have to write the range set of this in the comment box. Write the codomain of this function. Okay, and write the domain of this function. So try to find out this set. Third part is f is a function from r to r, which is given by fx is equal to x square. Again we have to show that whether it is 1 1 or onto. So let's do that. So in this function let's see where the mapping goes when you have the terms like numbers हमारे पास है 0 1 -1. तो अब यहाँ पर मैपिंग क्या है, x स्क्वायर है. सो थ्रू दिस x स्क्वायर वी हैव टू मैप द नंबर्स. 0 को मैप करेंगे, 0 की मैपिंग कहाँ होगी, 0 का स्क्वायर 0 को ही मैप करेगा. ठीक है, व्हाट अबाउट 1, 1 की मैपिंग कहाँ जाएगी, इट विल गो टू 1 ओनली. सो 1 विल मैप टू 1. But what about -1? When you take the square of -1, it will again go to 1. So that means this will go to 1 again. Okay, so now in this case, as you can see, this is the first set is your domain and the second one is codomain. ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो रहा है, डोमेन से जो भी नंबर हमारे हैं, जहाँ पे नेगेटिव नंबर्स जो भी होंगे, दे विल अगेन मैप टू द दिस पॉजिटिव नंबर्स। लाइक अगर हम 2 लेते हैं तो 2 कहाँ मैप करेगा, 4 को मैप करेगा। और अगर हम -2 लेते हैं तो वो भी हमारी मैपिंग कहाँ होगी, 4 को होगी। ठीक है, मतलब ऐसे सारे नंबर्स जो हैं हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव वाले, वो सारे एक ही नंबर को मैप कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे इन दोनों की मैपिंग सेम होगी, तो ये तो 1 1 नहीं हुआ। सो दिस इज नॉट 1 1। 1 1 के लिए क्या चाहिए, एक नंबर एक ही को मैप करेगा। ठीक है, 1 to 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ से एक ही लो एरो, यहाँ से एक एरो, मतलब ऐसे एक नंबर को 2 मैप नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे ऑन टू देखना है हमें। ऑन टू में अगर हम यहाँ पे एक और नंबर ले लेते हैं -1, ठीक है। नाउ हियर दिस सेट इज ऑल्सो आर, सो यू हैव 0 1 -1। लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पर मैपिंग, तो स्क्वायर की वजह से हमें क्या हो रहा है, सारे टर्म्स हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं, सारे नंबर्स जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो नेगेटिव नंबर्स तो कवर ही नहीं होंगे। ठीक है, सो इफ़ यू कंसिडर ऑल दीज नेगेटिव नंबर्स, दे डोंट हैव एनी प्री इमेज, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी ऑन टू। तो ये हमारा ऑन टू भी नहीं होगा। तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है f फ्रॉम r to r, इट इज़ नाइदर वन वर नॉर ऑन टू। सो लेट्स राइट इट प्रॉपरली. Now you can write that f of 1 is 1 and f of -1 is also 1. Okay, now you have that f of 1 is equal to f of -1. Because of this f is not 1 1. तो हमारा f तो 1 1 होगा ही नहीं, क्योंकि दो नंबर्स की इमेजेस सेम आ रही हैं. सो f is not 1 1. ओके, नाउ लेट्स डू द सेकेंड वन, ऑन टू. अब हमने देखा था ये ऑन टू भी नहीं है. ठीक है, तो हम ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे. सो इन ऑन टू यू कैन राइट दैट यू हैव ऑल नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि हमारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स यहाँ पर है उनकी प्री इमेजेस नहीं मिल रही हैं. सो ऑल नेगेटिव नंबर्स, ये नंबर्स कहाँ पर है, नेगेटिव नंबर्स कोडोमेन में. सो ऑल नेगेटिव नंबर्स इन द कोडोमेन डू नॉट हैव प्री इमेजेस. ठीक है, कहाँ पर नहीं है, इन द डोमेन. यहाँ पर हमारा डोमेन भी आर है और हमारा कोडोमेन भी आर है. सो जब हमारा ऐसा केस हो रहा है, देयरफॉर दिस फंक्शन एफ इज़ नॉट ऑन टू. ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा. ओके, सो एफ इज़ नॉट ऑन टू. सो लाइक दिस यू हैव टू प्रूव. Now see the second one where you have function f from z to z which is given by fx which is equal to x square. Now again we have to show that, we have to check this for 1 1 and on 2. Okay, so let's do that. So as you can see the function is from f is from z to z. So z हमारा डोमेन है और z हमारा कोडोमेन भी है. ठीक है, अभी हमें 0 की मैपिंग लेनी है. तो 0 कहाँ जाएगा, स्क्वायर करेंगे, so it will go to 0. Then where will 1 go? 1 square is 1, so this will go to 1. What about -1? When you take the square of -1 it will go to 1 अगेन. ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे दो नंबर्स की मैपिंग सेम हो रही है. ठीक है, जब हमारे पास ऐसा केस होता है कि दो नंबर सेम नंबर को मैप करते हैं, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी 1 1. तो ये 1 1 तो नहीं होगा. व्हाट अबाउट ऑन टू. Now as you can see the codomain, in the codomain we have -1 is left out, क्योंकि -1 के लिए हमें कोई भी यहाँ पर प्री इमेज नहीं मिलने वाला है. -1 का प्री इमेज मतलब अंडर रूट ऑफ -1 इस तरह से हमें मिलना चाहिए, पर वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, यहाँ पे तो आएगा नहीं. तो इसका मतलब इसके लिए हमें कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है. सो दिस इज़ नॉट ऑन टू. ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनके लिए तो हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी. तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं होगा. ठीक है, अब हम इसको देखते हैं लिखना कैसे, क्योंकि दोनों भी नहीं है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव सम एग्जाम्पल्स. Now let's see 1 1. In case of 1 1 you can write, because the function f at the point 1 is 1 and the function at the point -1, this is also 1. Okay, now these two numbers map to the same numbers, therefore f is not 1 1. तो f 1 1 तो नहीं होगा. Now let's check this for on 2. In on 2 again we have to choose some number for which we are not getting the pre-image. So you can write that -1 that belongs to z. Now you have to write the codomain here. This does not have any pre-image. कहाँ पर नहीं है pre-image? डोमेन में. ठीक है, ये वाला z हमारा डोमेन है. So therefore our f is not on 2. In fact, you can write for the whole negative numbers that all negative numbers in Z in the codomain don't have the pre-image in the domain. Therefore, this set is not, this function is not onto. तो हम पूरा लिखना चाहें तो हम नेगेटिव नंबर्स के लिए भी लिख सकते हैं, और अगर हमने ऐसे लिखा तो भी ट्रू है, मतलब दोनों आंसर्स करेक्ट है. ओके,
The next part is where you have a function f from n to n which is given by fx is equal to x cube. अब यहाँ पर x cube दिया है, फंक्शन हमारा n to n जा रहा है, तो हमें देखना है कि ये इंजेक्टिव होगा या सर्जेक्टिव होगा. ओके, सो लेट्स डू दैट. नाउ द फंक्शन इज फ्रॉम n to n, तो हमारे नंबर्स क्या आएंगे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. और हमें लेना क्या है मैपिंग में, x क्यूब लेना है. ठीक है, तो 1 हमारा x क्यूब करने के बाद कहाँ जाएगा, 1 विल मैप टू 1, 1 क्यूब इज़ 1. व्हाट अबाउट 2 क्यूब, 2 क्यूब कितना होता है 8, सो इट विल मैप टू 8. व्हाट अबाउट 3 क्यूब, 3 क्यूब कितना होता है 27, तो ये 27 को मैप करेगा. ठीक है, इस तरह हम यहाँ पे जो भी नंबर्स लेंगे दैट विल मैप टू सम नंबर्स. ठीक है, 1 बाय 1. सो दैट मीन्स इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 1 1. ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 1 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट, ऑन टू के लिए क्या देखना है. अब ये जो हमारा सेट है सेकंड वाला, इसमें हमारे नंबर्स 1 8 और 27 तो मैपिंग में आ गए, पर यहाँ पे नंबर्स 2 भी हैं, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है, 7 है, वैसे 8 के बाद नंबर्स हैं. ये सारे नंबर्स किसी भी मैपिंग में आए नहीं है यहाँ पर. ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे नंबर यहाँ पे बच जा रहे हैं. अगर ये यहाँ पे बच जा रहे हैं मतलब इनका प्री इमेज नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाता है, नॉट ऑन टू. ठीक है, ये फंक्शन कैसा हो गया, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑन टू. ये हमारा सेट अगेन यहाँ पे, सॉरी ये हमारा n है एंड दिस इज़ ऑल्सो n. ठीक है, फर्स्ट सेट को हम क्या लिखते हैं, दिस इज़ हमारा, ये हमारा डोमेन है एंड दिस इज कोडोमेन. तो अभी हमें क्या करना है, वैसे ही हमें इसका प्रूफ लिख करके दिखाना है. जब 1 1 होगा तो हमें प्रूफ लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो और इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक एलिमेंट लेके शो करना है कि ये 1 1 बताने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है कि इफ़ यू हैव योर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, सो इफ़ यू हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, सो दिस विल इम्प्लाई, now write the definition of this, x cube is equal to y cube. Now taking cube root on both the sides you will get x is equal to y. तो ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा 1 1. सो एफ इज़ 1 1. क्यों हो जाएगा, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, और हम कहाँ पर आ गए, एक्स इज इक्वल टू वाई पर. सो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1. नाउ लेट्स डू इट फॉर ऑन टू. ऑन टू के लिए यू कैन राइट एनीथिंग. इफ़ यू वॉन्ट टू राइट फॉर वन एलिमेंट यू कैन राइट 2 दैट बिलोंग्स टू n विच इज़ द कोडोमेन. ठीक है, जो 2 हमारा कोडोमेन में है, दैट डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, does not have any pre-image. pre-image कहाँ पर होगी उसकी, in n. पर ये n कैसा है हमारा, this n is domain. ठीक है, तो this 2 don't have any pre-image in the domain set, so that means this is not onto, f is not onto. तो इस तरह से हमें आंसर्स लिखने हैं इसके. ओके, let's see the last part of this fifth part where f is a function from z to z and it is given by fx is equal to x cube. यहाँ पर भी x क्यूब है पर फंक्शन हमारा z to z जा रहा है, मतलब यहाँ पे हमें नेगेटिव नंबर्स भी मिलेंगे, तो हमें उसका ध्यान देना है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हमारे पास 0 है तो 0 कहाँ मैप करेगा, जैसे n में कर रहा था, 0 का क्यूब 0 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा. व्हाट अबाउट 2 क्यूब, 2 क्यूब गिव्स यू 8. तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 का क्यूब लेंगे तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 इंटू -1 +1 होता है, +1 इंटू -1 -1 होता है. तो ये हमारी मैपिंग कहाँ जा रही है, -1 को जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक नंबर एक एलिमेंट को मैप कर रहा है यहाँ पर, तो ये तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, 1 1 हो रहा है. क्लियरली इट इज़ 1 1. चेक किसके लिए करना है हमें, ऑन टू के लिए. ये केस है जब हमारा डोमेन भी z है और कोडोमेन भी z है. ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे तो हमें मैपिंग मिल रही है 1 to 1, लेकिन 1 से 8 आने में देखो यहाँ पे जो नंबर्स हैं बीच के वो लेफ्ट आउट है. यहाँ पर 1 के बाद क्या क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7. इनके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है. इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है. सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑन टू, क्योंकि इनकी प्री इमेजेस नहीं मिल रही है हमें. ठीक है, इसी चीज़ को हमें लिख देना है. अब क्योंकि ये 1 1 है तो हमें प्रूफ लिखना है जैसे कि हमने 4th पार्ट में लिखा था. तो हम इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे, सेम बिल्कुल वैसे ही 1 1. So you have let fx is equal to fy. So you have x cube is equal to y cube. Now you can take cube root on both sides. So you have x is equal to y. So this implies that the function is 1 1. यहाँ पे function हमारा क्या हो रहा है, it is 1 1. What about onto? onto के लिए क्या करना है, onto के लिए कोई भी एक नंबर ले लेंगे और हम बोलेंगे कि उसका हमें प्री इमेज नहीं मिल रहा है. ठीक है, so take anything that you have 3 that belongs to कहाँ पर है ये z हमारा कोडोमेन. ठीक है, let 3 belong to this. It does not have any pre-image. pre-image कहाँ पर होगी, in z. Now this z is domain and therefore f is not onto. onto भी नहीं होगा. ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा.